Hello everyone, I'm Dr. Gulshan and I have with me today Dr. Vinay Goyal. Dr. Vinay Goyal is Director Neurology, Institute of Neurosciences, Medanta, Gurugram. Dr. Goyal has more than 20 years of work experience with AIIMS, Department of Neurology, where he rose from a senior resident to professor. He has won several awards, including IMA Academy of Medical Specialty, Distinguished Service Award, and Vishisht Chikitsa Ratna Award. He is the president of Movement Disorder Society of India. He is also the chief editor of Annals of Indian Academy of Neurology. Dr. Vinay, welcome to this educational session on seizures. We will focus mainly on recognizing, describing, and recording of seizures today. Dr. Vinay, most people associate epilepsy with the typical so-called fits they have witnessed. But there are other forms of epilepsy also. Can you please educate us about other forms of epilepsy or seizures? Thank you, Dr. Gulshan, for the kind introduction. See, actually, epilepsy is a common word used for a lot of type of seizures. And in fit is actually common day-to-day activity language word as a fit. And scientific term is epilepsy. So if somebody gets one episode or one seizure, we should not call it epilepsy. Usually, you have more number of seizures and then you have chances that when you have recurrent seizure, then we call it epilepsy. Now the question is, what are the different types of epilepsy? So in common terms, we can say it can present like a simple partial epilepsy or what we call is a focal epilepsy. So you could have only one part of the body jerking or have a numbness, or you could have a change in behavior, or you have excessive sweating or abnormal sensation in the gut. These are one type of seizures. In other seizures, you become suddenly unconscious. So you can have first type of seizure and become unconscious, or you can directly become unconscious. So there are generalized epilepsies. Then there are a lot of other type of epilepsy like myoclonic epilepsy. In myoclonic epilepsy, you only get jerks. So when I'm sitting here, I'll jerk like this. So these are common terms which are used. In some, sometimes you have an absence epilepsy, in which if I'm talking to you and suddenly I stop and start blinking or chewing, so you know these patients suddenly lose contact with surroundings and then again become attentive, and they are not confused at this time. So these are absence epilepsy in these patients. So there are a lot of type of epilepsy, but important thing to note from the caregiver's point of view is that whenever a person gets a seizure, best thing would be you record it. So for recording, you should be at least 3 to 4 feet away from the patient, so the entire patient is seen. Don't focus on face or arm, whichever is moving or shaking, because that will be seen in the video. Second thing will be to ask him, जगह के पूछे भैया क्या हो रहा है, आपको क्या होश में है कि नहीं है, और बोलो मैं 2-3 वर्ड बोलो उनको कि मैं याद रखना, मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, ये जानने के लिए कि उनको हमारी बात को सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है. ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. और पूछिए. So why is it so important to describe and recognize the right type of seizure? And what points should the caregivers know to describe the type of seizure? Very good. See, it is very important how the patient describes an episode to you. लोग आके बोलते हैं कि इनको दौरा पड़ गया, और ये दौरे का मतलब जरूर 1000 कारण होते हैं जिसको हम बोलते हैं दौरा पड़ गया, जिसमें एक कारण है जो कि एपिलेप्सी का दौरा है. कई बार ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अगर जो कम गया है तो उसकी वजह से चक्कर आए तो उससे हो सकता है. लेब्रेंथ की वजह से हो सकता है. आदमी को उल्टी जैसा सेंसेशन वो भी कह सकता है दौरा पड़ गया. आदमी को पैनिक अटैक हो जाए उससे वो भी कह सकता है कि दौरा पड़ गया. हार्ट अटैक जैसे कंडीशन हो जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाए उससे भी वो कह सकता है दौरा पड़ गया. तो दौरा एक बड़ा वेग टर्म है जिसको आपको पेशेंट को पूछ के कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके दौरे का मतलब क्या है. और जो फिट जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी के बारे में, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का जो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया. इसलिए कैस जब भी कोई दौरा पड़ता है तो 2-3 बातें हमेशा नोट और करनी चाहिए. पेशेंट उस वक्त क्या कर रहा था. एक पेशेंट था आराम से बैठा हुआ था और अचानक उसको दौरा हुआ. तो सबसे पहले वो क्या करता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और मेरा जब दौरा शुरू हुआ तो मैं अचानक एक तरफ देखने लगा या गुमसुम हो गया, बात करना बंद कर दिया, या मैं आपको लगेगा कि ब्लैंक लुक दे रहा है एंड यू स्टार्ट डूइंग लाइक दिस. तो ये ऑटोमेटिज्म है. या एक हाथ धीरे धीरे उठने लगा,
ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो डॉक्टर को ये जानना जरूरी है कि कौन से टाइप का दौरा है और उसको किस तरह से ट्रीट करना है, क्योंकि बहुत सारे अलग टाइप के दौरे होते हैं जिनका इलाज अलग अलग तरह से किया जा रहा है। इसलिए आज हम दोबारा इस बात को रीएम्फेसाइज कर रहे हैं कि दौरे के बारे में डिटेल अगर जितना अच्छा आप डॉक्टर को बताएंगे वो जरूरी है। और 2-3 बातें, जब भी दौरा पड़ता है तो उनका मुंह बंद होता है कि खुला होता है, मुंह से झाग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंखें बंद हो रही हैं या ऐसे ऊपर चढ़ गई हैं, तो आंखें ऊपर चढ़ गई हैं कि नहीं, आंखें ऊपर चढ़ गई हैं या एक तरफ देख रही हैं, ये भी जानना जरूरी है। या जब भी ऐसा दौरा पड़ रहा है उनकी जीभ तो नहीं कट गई। एक बात जीभ के कटने के बारे में बात करें, अगर जो आदमी की जीभ कट रही तो उसमें मुंह में चम्मच, उंगली या कोई भी चीज डालने की कोशिश ना करें। आपकी उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली की सीरियस इंजरी हो सकता है, आपको हार्ड चीज डालेंगे तो उनके दांत टूट सकते हैं, तो उसको आप 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और जो है 2 मिनट में वो धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये अब हम आगे बात करेंगे कि इसको दौरा पड़ता है तो करना क्या चाहिए। और ये नोट करना चाहिए कि कपड़ों में पेशाब तो नहीं निकल गया है, उस टाइम दौरे में सांस ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप पल्स देखना चाहते हैं तो पल्स देखना जानते हैं तो मरीज का पल्स देख लीजिए, पल्स नहीं देख पा रहे हैं तो छाती पे हाथ रख के देखिए कि हार्ट रेट कैसा चल रहा है। ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। Dr. Vinny, doctors usually greatly emphasize the appropriate record keeping. Why is this so, and what all should be recorded? जिसको हम बोलते हैं सीजर डायरी। सीजर डायरी का मतलब होता है कि एक हम डायरी नोट करें, उसमें डेट डालें, टाइम डालें, कितनी देर के लिए दौरा हुआ ये डालें, दौरे में और क्या क्या चीजें हुई। कई बार आदमी आके बोलता है कि सर पहले नहीं होता था, अब ये राइट साइड का झटका आ रहा है, तो मेरे को ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है। और उस टाइम कितनी देर बेहोश रहा, तो जब मैंने आपको कोई दवा दी है, मेरे पास 3 महीने बाद आए, मैं आपके रिकॉर्ड देख के देख सकता हूँ कि आपका दौरे की स्थिति जो धीरे धीरे सुधर रही है। इसका मतलब मैं जो आपको दवा दे रहा हूँ वो आपको माफी कर रही है, उसकी मात्रा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 3 मिनट बाद मैं देखूं कि नहीं इसमें कोई सुधार नहीं है, तो उस मेरे को अभी पता चलेगा जो भी दवाइयां अभी मैं दे रहा हूँ शायद उसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं है, तो या तो उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी या टाइप ऑफ मेडिसिन चेंज करना पड़ेगा। इसलिए रिकॉर्डिंग और मेंटेनिंग ए डायरी, सीजर डायरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन अ पीपल हु हैव लॉन्ग टर्म सीजर्स। किसी को 1 या 2 हुआ है तो ठीक है, लेकिन फिर भी नोट करना बहुत जरूरी है। और ये भी नोट करें कि सॉरी, जब भी दौरा पड़ता है वो जगते में पड़ता है या सोते में पड़ता है। सोते में पड़ा है लेकिन बोलते रात में पड़ता है, लेकिन मेरी आंख खुल गई थी, इसका मतलब जग रहे थे तो वो दौरा पड़ा है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। So what are the common tests that should be undertaken to diagnose seizures? यस, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि आप डॉक्टर को कितनी अच्छी तरह से बताते हैं और डॉक्टर आपकी बात का क्या इंटरप्रिटेशन है। ये तो सबसे पहला टेस्ट मानता हूँ मैं, क्योंकि उसी से मेजोरिटी टाइम ये पता चल जाता है कि हमको कौन सी दवा इनको कब कितनी डोज में देनी है। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि बेसिक टेस्ट जो होते हैं जैसे प्लेन सीटी स्कैन होता है या एक एमआरआई होता है, ये तो बड़े बेसिक टेस्ट होते हैं। ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपके आसपास क्या है। एक होता है ईईजी जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं। तो ज्यादातर दौरों में मैं ऐसा देखते हैं कि 40 से 60% लोगों में ईजी एबनॉर्मल आएगा और 20 से 30% लोगों में ईजी नॉर्मल आएगा। तो आपको दौरे पड़ते हैं, आपने ईजी किया वो नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दौरे नहीं है। उस 20 या 30 मिनट का जो रिकॉर्ड किया है उस टाइम आपके ब्रेन में वो एक्टिविटी नहीं आ रही है, उससे सिर्फ इतना ही पता चलता है। तो ईजी करने का फायदा ये होता है कि कई बार बड़े सिंड्रोमिक डायग्नोसिस, जैसे एक पर्टिकुलर टाइप की, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जेएमई होती है, जुवेनाइल मायोक्रोनिक एपिलेप्सी, उसको तो हम बोलते हैं जिस दिन पहली बार दौरा पड़े ईजी संकेत कर दो आप, तो उसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे डायग्नोसिस बड़ा आसानी से कंफर्म हो जाता है और उसको डॉक्टर को इलाज करने में बहुत आसानी रहती है। अनकॉमन चीजें होती हैं जैसे पैट स्कैन करना पड़ता है या और दूसरे डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो कि भी इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, वो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अनकॉमन और रेयर सर्कमस्टेंसेस में जरूरत पड़ती है। Thank you, Dr. Vinay, for this insightful and descriptive information. I'm sure this will help the patients as well as their caregivers in managing their loved ones much better for their epilepsy attacks. Thank you so much, sir.